किसान अंदोलन ਨੂੰ हर कोई अपने ढंग नाल सहयोग दे रहा है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੰਗੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਲੈ ਲਓ, ਬਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੋਬਾਈਲ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਿਟਸ ਆ, ਉਸ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈਡੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਫੋਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ R&D ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਆਈ 2-2 ਪੀਸਿਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ 10 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੇਖਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕ ਕਰੀ ਆਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫਸਟ ਮੰਥ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਕਨਵਰਜਨ ਕਿੱਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 1200 ਤੋਂ 1800 ਤੱਕ, 1200 to 1800, ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦਾਮ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਬਿਲਡ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਿੰਗ ਆ PVC ਪਾਈਪ ਆ, ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਵਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 450 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਿਦ ਬੈਟਰੀਜ਼, ਕੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 450 ਰੁਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫੰਡ ਕਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਾਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੈਸੇ ਟੈਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਟੈਕ, AI ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਹੀ ਅੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੀਨ ਜੈਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਆ PVC ਬਿਲਟ ਇਨ ਆ, ਇਹ 2 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ PVC ਪਾਈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਪੋ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਲਿਥੀਅਮ ਪੋਲੀਮਰ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਥ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮਿਥ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 올ਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਟ ਵਧੀਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 25 ਪੀਸਸ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਦਾ, ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਆ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਜਟ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਨੀਡਸ ਆ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਨੀਡਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਇੰਚ ਦੀ PVC ਪਾਈਪ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 10,000 mAh ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ BCM ਬੋਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਵੀ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਸ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦੂਗਾ 0 to 100 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਨਾਰਮਲੀ। 10,000 mAh ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਨੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਜੋਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। नहीं ज़मीन तो नहीं है बट ज़मीर है। हाँ जी, ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए बिल्कुल जी। ज़मीर कैसा है जो आपके बच्चे ने जो पावर बैंक बनाया, कैसे जब सोचा वो क्या आपने हेल्प की? जी हेल्प है कि हम जाते थे जब से फ्रॉम डे 1 जब से किसान सड़कों पे बैठे हैं तो तब से हम जा रहे हैं। जब ये ऑर्डिनेंस जब बना था ना, जब जून 5 में जब बना था तो तब भी हमने एजिटेशन किया था। जून के लास्ट वीक में बस अड्डे पे हमने किया था, तो तब किसी को पता नहीं था, तब किसानों को भी नहीं पता था कि ये वहाँ एजिटेशन किस बात का चल रहा है। हमने एजिटेशन करवाया था हॉल गेट के बाहर भी, कचहरी चौक पे भी किया था कुछ जून के आखिरी हफ्ते में। बट आते आते फिर इनको किसानों को पता क्यों लगा, जब इनको जब ज़्यादा पता चला, जो जैसे कलाकार भी बाहर निकल के आए तो उसके बाद सितंबर वीक में इनको पता चला, तो हमने जब जाना चालू किया अक्टूबर 1 वीक से, बेटा भी साथ जाता था मेरे, तो इसने फिर जाके एक चीज़ महसूस की। हम देख रहे थे कि थ्रू नेशनल इंटरनेशनल NGOs आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग मदद करने आ रहे हैं। हमने देखा डॉक्टर्स भी अपनी नौकरी छोड़ के इनकी सेवा करने आ रहे हैं। तो इसने सबसे बड़ी चीज़ जो महसूस की वहाँ जाके कि इनकी सबसे बड़ा कनेक्टिविटी इशू आ रहा था। हम जहाँ भी कहीं भी जाते थे हमको किसान बोलते थे भाई एक फ़ोन मिलाओ कि घर पे बात करनी है, आपका फ़ोन है, इस नंबर पर फ़ोन करा दो। तो वो इसको बात इसको पिंच की कि वो क्यों नहीं है वो, फिर वो उनका जवाब ये होता था कि हमारा फ़ोन डेड पड़ा है, बैटरी नहीं है। तो वो इसने आके फिर वहाँ से इसको लगा कि हमको कुछ करना चाहिए कि चलो एटलीस्ट हम इस पे काम कर सकते हैं, पावर बैंक पे काम कर सकते हैं जी। तो क्या क्या सामान आपने लेके दिया, को क्या क्या हेल्प किया आपने? ये सामान तो इसने लिख के दिया था मेरे को, जो लेना था ना, जो मेन तो लिथियम बैटरी इसकी, तो BCM बोर्ड है और के मॉड्यूल्स हैं,
और पीवीसी पाइप हमने पहले सोचा था लकड़ी का, इनके साथ हम डिस्कस आपस में जब कर रहे थे R&D के ऊपर कि लकड़ी का कर ले बॉक्स इसका बनवा के बाहर से, तो लकड़ी के बॉक्स में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वो ये होता है वो वाटरप्रूफ नहीं होता और उसकी आपको ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। फिर हमने लोहे का सोचा कि टीन का बनवा लें या दूसरा कुछ, फिर उसमें भी वो शॉक प्रूफ वो डर रहता है और हाथ में पकड़ा भी अच्छा लगता है किसी को ना। फिर फाइनली हमने एंड अप किया इसको R&D करते करते पीवीसी पाइप के ऊपर, कि पीवीसी पाइप ऐसा मटेरियल है जो इजीली अवेलेबल है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी है, वो शॉक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और किसी मौसम में इसको आप रख दो, गर्मी में सर्दी में कुछ नहीं होता इसको। तो फिर यहाँ से तो ये सामान इसने फिर हमने फाइनल किया बैठ के, फिर मैं लेके आया इनके लिए। हर काम की शुरुआत में काफी मुश्किल आती है, दिक्कत आती है, कौन कौन सी दिक्कत आपको आई? दिक्कत तो अभी भी आ रही है जी, मुश्किल से फ्रॉम डे वन आ रही है, बट अभी है कि हमको पता चल गया कि दिक्कतों से स्लोली जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हम अपने अपने मतलब दिक्कतों से हम जैसे उभरते जा रहे हैं। जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि सारा काम हम मैनुअल कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भी इसमें मशीन कोई ड्रिलिंग मशीन, कटिंग मशीन कुछ भी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो घर पे घरेलू जैसा जुगाड़ पहले दिन से चल रहा था वैसे ही हमारा चल रहा है। तो ये सब कुछ मैनुअल हो रहा है, बट मशीनरी तक अभी हमने यूज़ नहीं किया बीच में, तो उसके लिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है, 3 से 4 बन पाते हैं एक दिन में मुश्किल से। हाँ जी। कितने दिन लगे इसको बनाने में, कितने दिन आपने टेस्टिंग की, किस पे टेस्टिंग की? बनाने में हमारे घर में जैसे इसको बनाने में पहले लग गए हमारे 8 से 10 दिन लग गए। उसके बाद हमने इसको जो बना के टेस्टिंग की, हमारे घर के अंदर मतलब 8 मोबाइल है हमारे फैमिली के अंदर, मम्मी डैडी के पास, मेरे इसके पास है, भाई के पास है, सबके पास 8। उन सब के फ़ोन के ऊपर हमने अलग अलग टेस्टिंग की। 10 दिन लगे हमको टेस्टिंग करने में, तो हमको 20 दिन लग गए, 10 दिन बनाने में और 10 दिन टेस्टिंग करने में। उसके बाद ही हमने दिया बाहर। बिल्कुल। किसानों को लेके आए? हाँ जी, हाँ जी, फिर किसानों को देखे आए और ये प्राउड फील होता है, बट उनके लिए तो हम जितना भी कर सके उतना कम है। अभी एक गुरजोत ने ये भी आपको बात बताई कि हम कोशिश करेंगे कि आम पब्लिक से भी अपील करूंगा कि जो लेना है आप अफोर्डेबल प्राइस में आपको देंगे और विथ गारंटी देंगे। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, हम जब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाजार से खरीदते हैं तो उसके बाद जब दोबारा लेके जाते हैं तो एक ही जवाब मिलता है, यूनिवर्सल जवाब उन्होंने रखा होता है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कोई गारंटी नहीं होती जी, मतलब दोबारा आपको कोई एंटरटेन करता ही नहीं। तो हम उसको वो भी एंटरटेन करके दे रहे हैं कि 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं, कुछ खराब हो जाए कुछ, क्योंकि हमको पता है कि हमने कैसे बनाया, इसके अंदर क्या है, तो हम वो करके देंगे लोगों को बोल रहे हैं। और उससे जो हमारी एक मार्जिनल सी वो रहेगी इसके ऊपर, हमारी जो नॉर्मल लोग भी लेंगे इसको, नॉर्मल पब्लिक भी हमसे अगर लेती है तो वो बिल्कुल अफोर्डेबल रहेगा। उसके ऊपर जो छोटी सी मार्जिन हम कमाएंगे, उसी मार्जिन से फिर हम और R&D करेंगे कि और हम किसानों के लिए क्या क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो कितने पीस अभी तक देके आ चुके किसानों को? अभी तक अराउंड 20 से 25 पीस है जी जो दिए हमने। जब देखे आए तो किसानों के चेहरे पे कैसा था? बिल्कुल अच्छा फील हुआ उनको, मतलब वो सबसे बड़ी बात तो है कि अब उनको एटलीस्ट एक हमारा क्या है कि सब किसानों को नहीं, जैसे एक ट्रॉली में अगर 10 किसान जा रहे हैं तो अगर आप एक ट्रॉली में एक भी दे दो तो सबका भला हो जाएगा, क्योंकि बारी बारी करके पूरे वो जो ग्रुप जो गांव से निकला है वो सारे अपना अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे एक पॉइंट्स हैं, जैसे ये है, एक आपको ढिलवान जो लगा है, एक माना वाला टोल प्लाजा है, एक लाडोवाल टोल प्लाजा है, तो कम से कम हर टोल प्लाजा पे एक भी आपने दे दिया तो मोर देन एनफ है, क्योंकि एटलीस्ट उनका बैकअप का वो नहीं रहेगा कुछ प्रॉब्लम, तो बैकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। बनती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो कोई आम इंसान खाता है उसको जुगाड़ बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए जो पिछले हम देख रहे हैं, पिछले 5-6 सालों में जो सरकार की जो नीतियां आई हैं, जो मतलब आम आदमी को जो है ना 2 वक्त की रोटी क्यों भी अभी लाले पड़ने वाले हैं, अभी आने वाले टाइम पे जो ये आ रहा है, तो बोलते हैं कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसने आदमियों को सबको ना जुगाड़ू बना दिया है। आपने देखा होगा इतनी ठंड में किसान बैठे थे, वहां भी गीजर चल पड़े जो ऐसे चलते हैं, बिल्कुल देसी जुगाड़ ऑथेंटिक, और वो पास भी हुए हैं। तो ये सब चीजें मतलब किसान कर करके जो कर रहे हैं ना, उससे काफी कुछ हमको आंदोलन से सीखने को मिला कि वहाँ अपने घर छोड़ के जब सड़कों पे बैठे हैं तो सड़कों पे सर्वाइव कैसे करना। हमने डिस्कवरी या दूसरे चैनलों पे देखते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह, कि जंगलों में कैसे सर्वाइव करना है। असली अगर देखा जाए तो किसानों से हमको सीखना चाहिए कि सर्वाइव कैसे करना है अपना घर छोड़ के हम जब बाहर निकलते हैं। तो ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੋਣੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਰਚਾ ਕੀ ਆਇਆ, इस पावर बैंक की समर्था कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सरकार का तो धन्यवाद, हाँ सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये सब हमको जुगाड़ू बना दिया सरकार ने। और एक और चीज़ है कि हमको मिला दिया, जैसे अब जो ये जैसे बोलते हैं ना कब के बिछड़े, जो छोटे भाई बड़े भाई बिछड़े, जैसे हरियाणा पंजाब में और सारे स्टेट में
ये जैसे जैसे नॉन इशू को इशू बनाते हैं ना, जैसे पॉलिटिकल जो जितनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारी पार्टियों की मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, पिछले 70 सालों में और पिछले अब के जो 7 साल है वो भी हम देख लें, तो ये नॉन इशू को इशू बना के इन्होंने ऐसा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं लोग। जैसे सतलुज यमुना लिंक का इशू है, उसको आपको कावेरी का इशू है जो तमिलनाडु और कर्नाटक में चलता है, और हर 5 साल बाद इशू रेज होता है इलेक्शन के टाइम पे। जो महादाई नदी है वो गोवा और कर्नाटका में इशू चलता है पानी के ऊपर। जो नर्मदा का इशू है वो महाराष्ट्र और गुजरात को लड़ाते हैं। हर 5 साल में वोट के ठीक 6 महीने पहले इशू उठता है, ये इसका उठता है। तो वो सब चीजें अब लोगों को पता चल गई हैं, और धन्यवाद सरकार का कि हम हमारे ऊपर क्लैरिटी लाने जो सरकार ने काम किया है, जो आपस में देश को जोड़ने का काम किया है। मतलब तोड़ते तोड़ते कहीं तक ऐसा कोई तार इन्होंने जोड़ दी गलती से कि वो मतलब इनकी मंशा सही नहीं थी, बट वो जो कुदरत है, कुदरत ने जोड़ दिया सबको। बिल्कुल। और क्या क्या आपने प्लानिंग किया है कि जो किसानों को जैसे पावर बैंक बनाया और क्या हेल्प कर सकते हैं? R&D अभी और भी हम कर रहे हैं जी इसके ऊपर। अभी गुरजोत ने अभी आपसे बात की ना, जो हम जो ये ई कन्वर्जन किट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे भी हम सस्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों की बाइक्स हैं, लोगों के जो साइकिल है, हम लोगों को यही जाके बोलते हैं। और हमने अभी 4-5 दिन पहले भी मेरी मीटिंग हुई थी गाँव में, तो उनको मैं फार्मूला दे के आऊँ पोलिंग, जैसे ट्रॉली पोलिंग का। किसी एक गांव से अगर सब्जी जाती है, जैसे हमारी ये मानावाड़ा जंडियाला सारी सब्जी बेल्ट है, तो एक गांव से अगर सब्जी जाती है तो उनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना के दे दिए 4-5 गांव वालों को कि आप रात को शाम को 4 बजे डाल दिया करो कि सुबह मेरे को 4 बजे निकलना है, और मेरी सपोज मेरी गाजर जा रही है जो सिर्फ आपको मतलब आधा ट्राली जाएगी मुश्किल से, जो 10 कुंटल या 20 कुंटल, तो बाकी गाँव वाले जो वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, तो वो भी उसी ट्रॉली में सामान लेके आ सकते हैं, मतलब पूल करके आ सकते हैं एक ट्रॉली में। तो जहां एक ही गांव से 5 ट्रॉलियां निकलनी है तो एक ट्रॉली में आए, तो बारी बारी आ सकते हैं। संडे मंडे एक दिन अपना बना लें कि संडे इसकी ट्रॉली आएगी, मंडे उसकी ट्रॉली आएगी, और वेडनेसडे को गज्जन सिंह की, सज्जन सिंह की, ऐसे ऐसे बना लें। बिल्कुल, तो उसमें काफी डीजल बचेगा इनका। कब तक ऐसे ही किसानों को आप भी ऐसे फ्री में जो पावर बैंक देते रहेंगे? जब तक इनका चलता रहेगा, जब तक देखिए आंदोलन पे बैठे हैं, उसके बाद भी आंदोलन, ये नहीं कि आंदोलन के बाद हम पीछे हट जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि अब जरूरत है। जो पिछले जो 2 दहाके अगर हम देख लें, अगर हम रफली बात करें, तो उसमें क्या हुआ था, आदमी के साथ संवाद नहीं हुआ, कहीं वो कनेक्टिविटी दूर हुई थी। हर आदमी अपनी वर्चुअल दुनिया में खोया हुआ था एलईडी स्क्रीन के ऊपर। आप देखते होंगे बस अड्डों में, मॉल्स में, कहीं भी हम जाते थे, मेट्रोज में, या आपको जो हमारी बस चलती जो ट्रेन में, कहीं भी, तो एक दूसरे से बात करने के बजाय लोग अपनी अपनी किसी के 2000 दोस्त हैं, किसी के 5000 फेसबुक पे दोस्त हैं, उस पे वर्चुअल दुनिया पे लोग रहते थे और आपस में संवाद नहीं करते थे। तो उसी चीज का फायदा आज हमको ये सरकारों को ये हुआ है कि हमको डिवाइड करने का उन्होंने काम किया है। और वर्चुअल दुनिया पे वही चलता है जो डिवाइड करने वाला मटेरियल चलता है, जो काफी हद तक स्पॉन्सर्ड भी होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमको आपस में एक दूसरे से जो तोड़ती है, जो समाज में आग लगाने का काम करती है। तो अब लोग जितना आपस में लोग जुड़ेंगे, बैठेंगे, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि साथ, वो साथ कल्चर वापस लाना पड़ेगा। साथ कल्चर को भी हम ई साथ से जोड़ना चाहते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, अगला प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है गांव में। मैं गांव वालों को भी मैंने ये बात बताई थी कि अब जो भी कोई किसी गांव से कोई आपको शहीदी गेट बनता है, या किसी के नाम पे आपको यादगार बनानी है, उसके नाम पे आप गेट बनाने के बजाय, या कोई ये पार्क बनाने के बजाय, पहले आप लाइब्रेरी बनवाओ। हर गाँव में गुरुद्वारे होते हैं बड़े, आजकल तो 10-10 गुरुद्वारे भी एक गाँव में। तो जो गाँव का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है उसके अंदर एक कमरा रखो, उसके अंदर आप लाइब्रेरी रखो, लाइब्रेरी और कंप्यूटर सिस्टम रखो, जिसमें आपको पूरा, जिसको ई सत्र बोलते हैं, जिसमें 10 साल का बच्चा भी जाए, 90 साल का बुजुर्ग भी जाए, और आपस में हॉट टॉपिक्स पे ये लोग इशू करें, डिबेट करें। और वीकली एटलीस्ट गांव लेवल पे डिबेट होनी चाहिए हॉट टॉपिक्स पे, नेशनल इश्यूज पे, स्टेट इश्यूज पे, इंटरनेशनल इश्यूज पे। वो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा वो है। आखिरी सवाल, खेती कानून को आप कैसे देखते हैं? इतने महीने से किसान बैठा सर, तो केंद्र सरकार कब से मस नहीं हो रही? खेती कानून टोटली वन साइडेड है जी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, बड़े बड़े जो आपके दूसरे देशों के भी जो थिंकर्स हैं। आप इनकी देवेंद्र शर्मा जी हैं जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, वो भी फ्रॉम डे वन बोल रहे हैं ये सारी बातें। जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, जो आपको JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये वन साइडेड है। ये सारा जो बना हो ना, ये सारा सिर्फ कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जो सिर्फ जो चंद पूंजीपति उनको बढ़ावा देने के लिए। बट इसका जो साइड इफेक्ट पड़ने वाला देश में, ऐसी मारो मार हाहाकार मचने वाली कि इसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो हाहाकार मचने वाली है। मतलब इसके बाद जो, क्योंकि अनाज जब इकट्ठा हो जाएगा, कोई अनाज एक, और उसकी फिर वापस आप 1955 में ये कानून लाए थे लोग, जो आपको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 65 साल के बाद आज उसको तोड़ने की क्या जरूरत थी? अभी तोड़ के उन्होंने बना दिया कि भंडारण करो। और इन्होंने एक और कानून ये लेके आए कि 20% इसको लीगलाइज कर दिया। जो काम इलीगल थे उसको लीगल कर रही है सरकार, कि 20% आप खाने वाले तेल में मिलावट कर सकते हो।
बाहर से लाके। वो अभी अडानी और विरमर का एक साथ कंपनी थी, अभी इनकी कंपनी अब अलग हो गई, तो अब इनको इन्होंने बोल दिया कि इंडिया में जो भी बंदा काम कर रहा है, जो बड़े मतलब पूंजीपति इनके उनको इन्होंने ये दे दी, ये छूट दे दी कि 20% आप खाने में मिलावट कर सकते हो। खाने में मिलावट करके तो ऐसे लोग मर रहे हैं, किसी का फैटी लिवर आ रहा है, किसी की किडनी डैमेज हो रही है, कि कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ रही है। कोई भी आप घर दिखा दो, आप चलो इंडिया की बात नहीं करता, पंजाब का बात करता हूँ, कि कहीं आप दिखा दो जिस घर में आपको लीवर की दवाई नहीं जाती, थायराइड की दवाई नहीं जाती, कोई आपको इसकी दवाई, शुगर की दवाई नहीं जाती, या हाइपरटेंशन की दवाई नहीं जाती। कोई एक घर ऐसा नहीं होगा जहाँ दवाइयाँ नहीं जाती। बिल्कुल इतनी मौतों के बाद किसान कष्ट से मस्त नहीं है। नहीं होंगे, और होंगे भी नहीं, क्योंकि किसान जो है वो हर मुसीबत से लड़ना जानता है। उनको गलों से उनको जो ओले पड़ते हैं, तूफान आता है, बारिश आती है, नदी का पानी, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, हर चीज से लड़ना जानता है किसान जो है। वो मिट्टी में मिट्टी रह के वो, और मतलब मिट्टी के आदमी के साथ आप नहीं बैठ सकते हैं। सरकार जो अभी जिसको बोलते हैं सरकार जो मत्था लगा रही है, सरकार जो टकराव कर रही है, वो गलत लोगों के साथ टकराव कर रही है। पहले इन्होंने कारोबारियों को डुबाया, या छोटे MSME SME वो सब बोलते नहीं थे। बीच में इन्होंने होटल्स, काफी कोरोना के बाद भी होटल इंडस्ट्री जो है, सर्विस इंडस्ट्री अब तक जूझ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हाल है आप सबको पता है। बट अभी इन्होंने गलत हाल डाल दिया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हाथ डाल दिया, तो अब जो है उनका बैकफायर हो रहा है। बिल्कुल, और सबको आना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैंने सेक्टर्स नाम लिए वो खाना खाते हैं। जो इवन जो फौजी सरहद पे खड़ा है, छोटा बच्चा है, जो कोई भी हो, मतलब जो इंसान जो सांस लेता है वो खाना खाता है। हर इंसान की ड्यूटी बनती है कि किसानों को अपने, चाहे वहाँ ना भी बैठे सिंगू बॉर्डर पे या कहीं उनके साथ अगर नीचे नहीं भी बैठ सकता जाके धरने पे, कम से कम जहाँ भी अपने घर पे बैठा है, कहीं ना कहीं किसी के तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।